ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਸ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਸੈਟ ਫਿਲਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਮੈਨੇ ਨਲ ਸੈਟ। ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੋ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ A x such that x belongs to real and x square plus 1 is equal to 0। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ x ਹੈ, x ਰੀਅਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 0 ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਏਓਟਾ ਲਓਗੇ ਦੈਨ -1 + 1 0 ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਐਮਪਟੀ ਸੈਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੀ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਐਕਸ ਸੱਚ ਦੈਟ x belongs to complex and x square plus 1 is equal to 0। तो अगर मैं x ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਮਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏਓਟਾ। ਏਓਟੇ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? -1 ਮਾਈਨਸ ਏਓਟਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਏਓਟਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 0 ਮਾਈਨਸ ਏਓਟਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਏਓਟਾ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਆਹ ਲਿਖਣਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਨਲ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਲ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਆਉਣਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਸੀ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡ, ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਚ। ਹਾਂ ਯੈਸ ਇਹ ਐਮਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਟੀਨੈਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਐਮਟੀਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਮਟੀਨੈਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਐਮਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈ ਨੂੰ ਬਰੈਕਟ ਪਾਤੀ ਇਹ ਨੋਟ ਐਮਪਟੀ, ਫਾਈ ਨੂੰ ਬਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਫਾਈ ਅਗਰ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਐਮਪਟੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਫਾਈ ਨੂੰ ਬਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਬਰੈਕਟ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ। ਸੋ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਨਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਫॉर एग्जांपल A E I O U सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है जी। इनफाइनाइट सेट का मतलब है इनफाइनाइट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर x सच x बिलोंग टू नेचुरल नंबर की होगा 1 2 3 4, रुकना तो कितने है ही नहीं गा। सो इन्नी की डेफिनेशन है जी। मेरा ख्याल है कोई एड्डी लंबी छोटी गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल। अगर तुहाडे कोल फाइनाइट एलीमेंट ने तुसी काउंट कर सकते हो, ठीक है जी, तो फिर आप कहने हैं तुहाडे पास, ठीक है। तो जे तुसी नहीं काउंट कर सकते तो उस केस में तुहाडे पास हैगा, ठीक है जी। हुण अगर फाइनाइट है, ठीक है, तो ऑर्डर और कार्डिनलिटी डिफाइन होगी। ऑर्डर और कार्डिनलिटी, ऑर्डर और कार्डिनलिटी कितना डिफाइन होगी जी? जे तुसी फाइनाइट हो। सो ऑर्डर और कार्डिनलिटी का मतलब की है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैट,
या नंबर ऑफ मैंबरस कह लो या नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए सैट कह लो। तुहाडे पास हुण जे मान लो इहदा ऑर्डर देना होवे, इहदा नाम मैं ए रख लो, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा जी 5, या कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी होगी 5। क्यों 5 होगी जी, क्योंकि इस विच 5 एलीमेंट्स हैं, आपां नूं पता हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਫਾਈ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਬਟ ਫਾਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਕਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਆਊਗਾ ਵਰਡ, ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਨੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ सिंगलटन, सिंगल पा लो जी SINGL। ठीक है जी। ई भी पऊगा, ई हैगा इत्थे सिंगलटन, फिर टन पा दो। सिंगलटन सैट का मतलब की हुंदा 1 एलीमेंट, सिर्फ एक एलीमेंट, 1 एलीमेंट। अगर तुहाडे कोल सिर्फ एक एलीमेंट होया, देखो पेपर विच लिखणियां नहीं आनियां डेफिनेशनां कि सिंगलटन की हुंदा। थोड़ा बेस इन्ना स्ट्रोंग होवे कि तुहानूं पता होवे। सो सिंगलटन सैट की एग्जाम्पल देनी होवे, मान लो मैं 1 लिख लिया कल्ला, ये सिंगलटन सैट है। मान लो मैं 5 नूं ब्रैकेट च पा लिया, सो ये सिंगलटन सैट हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो सिंगलटन सैट का मतलब की हैगा, एक सिंगल एलीमेंट होवे, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर नूं ही कार्डिनैलिटी कहते हैं तुहाडे कोल, ते सिंगलटन सैट हो गया। ठीक हो गया जी। ये सारिया चीज़ां आपां नूं समझ आ गई। सो चलिए जी तीसरे पेज पे। हुण आपां आ गया तुहाडे पास इक्विवेलेंट सैट, EQUIVALENT। ठीक है जी। इक्विवेलेंट सैट्स। ठीक है। देखो इस डेफिनेशन नूं ना मैं पहला कह देवां, क्योंकि 11th विच इहदी बड़ी छोटी फॉर्म है, तो पर अगर तुसी अगलियां क्लासां जाओगे तो थोड़ी जी कंपलैक्स फॉर्म च हो जाएगी। और समटाइम्स ना दसो बच्चा सोचता टीचर नूं डेफिनेशन नहीं आती। देखो जिथे तक 11th की गल है, नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन बी हो जाए। ठीक है। तो जोड़ा है तुहाडे कोल उहनूं आपां इक्विवेलेंट सैट कहने हैं। ये तुहाडी बुक विच डेफिनेशन एग्जाम्पल मैं देखा कि ए 1 2 3 है, तो बी दे विच ABC है, तो ऑर्डर ऑफ ए है जोड़ा वो 3 है, ऑर्डर ऑफ बी भी 3 है, तो ये दोनों इक्वल ने। ठीक है। तो फिर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ठीक है जी। ये वाली जिहड़ी चीज़ हैगी है, वैसे डेफिनेशन की हुंदी है, वैसे जिहड़ी एक्चुअल डेफिनेशन है, देखो तुहानूं नहीं शायद समझ आवे तो ना ही 11th पढ़ाई जाती है। एक्चुअली डेफिनेशन है ए सैट हैविंग ए कोई सैट है, ए सैट हैविंग 1 कॉरस्पोंडेंस विद नेचुरल नंबर्स इज इक्विवेलेंट सैट। सो ए 1 मतलब तुहाडे पास कॉरस्पोंडेंट विच नैचुरल नंबर होंदी है, वो इक्विवेलेंट सैट होंदे ने। बट ये वाला पार्ट थोड़ी किताब विच नहीं होएगा, क्योंकि BSc MSc करते हैं। ठीक है। इस करके फिलहाल असीं इस पार्ट ते नहीं जाते। दसिया तां है किते लिखिया मिल जाए, तुसीं कहो जो 1 कॉरस्पोंडेंस का मतलब तुहानूं 12th पता लगेगा, वो भी नहीं 11th पता लगना। ठीक है जी। सो ये तो हो गया तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है बाई इक्विवेलेंट। एक अगर इक्वल सैट आ जाता, इक्वल सैट का मतलब है नंबर भी सेम होना चाहिए एंड एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। मतलब ए विच मैं लिखिया 1 2 3, तो बी विच भी 1 2 3 ही चाहिए है। सो इक्वल सैट ਇਹਦਾ मतलब इक्वल ਤੇ इक्विवेलेंट ਵਿੱਚ ਕੀ फ़र्क होया, इक्विवेलेंट सिर्फ कार्डिनैलिटी सेम है। इक्विवेलेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी की ਹੁੰਦਾ ऑर्डर गिनती।
कार्डिनैलिटी सेम है जी इक्वलेंट सैट विच, ठीक है। इक्वल सैट विच की है, कार्डिनैलिटी भी सेम है, एलीमेंट की भी कोरस्पोंडेंस है, एलीमेंट भी तुहाडे कोल जिहड़ा है वो बिल्कुल इन बिन सेम होएगा, अदरवाइज तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये नहीं बनेगा। सो तुहानू क्या पता लग्या जी? फिलहाल इक्वलेंट सैट का मतलब पता लग गया जी, इक्वल सैट का मतलब पता लग गया जी। ये बारे मैं हजे कुछ नहीं कह रहा क्योंकि नहीं पता लगना। फिर बोलो, फिर बंदा कहता ही दसिया क्यों मैं? देखो तुसी किते जेई जूई दे नोट्स किते टर्म पढ़ लो तो फिर उस टाइम बच्चा ही सोचता शायद सर को पता ना हो, ठीक है। देखो 11 की किताब च नहीं मिलेगी किते, बट जदों तुसी जेई जूई च किते पढ़ लो, क्योंकि मेरे ख्याल 12th च भी किते नहीं मिलेगी, BSc ऑनर्स या MSc ऑनर्स च असीं यूज़ करते हैं। इस करके आप थोड़ा जिहा ख्याल रख के चलना, बहुत ही चिंता नहीं करनी इस ब्रैकेट वाली चीज़ की। ठीक हो गया जी। सो चलिए जी अगे आप तुहाडे कोल हाँ जी। सो 4 नंबर पेज पर आ गए जी आप। हुण आप अगर क्वेश्चन देखिए तुहाडे कोल, हुण तुहानू मान लो उन्हें इक्वल पूछा तो इक्वल च मान लो उन्हें कुछ ए च की दिता जी 2 और 3, बी विच की दिता x सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये पूछता ए इक्वल टू बी क्वेश्चन मार्क, भाई ए इक्वल टू बी दे है कि नहीं है। इक्वल होने लिए क्या चाहिए? नंबर 1 कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए, नंबर 1 कार्डिनैलिटी सेम, नंबर 2 एलीमेंट इन बिन सेम, ठीक है। सो पहला तो आप इनू सॉल्व करिए। सो जो मैं इनू सॉल्व करूँगा एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 माइनस बी प्लस माइनस 25 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो -5 प्लस माइनस, सो ये आ गया -5 प्लस माइनस, सो -3 आ जाएगा जी, क्योंकि ए माइनस था माइनस था तो -2 आ जाएगा। और देखो 3 का स्केयर 9, 15 9 6 15, ठीक है जी। सो ये हो गई तुहाडे कोल। हुण तुसीं साफ देखो बई जिहड़ा मेरा बी है, बी दे विच आया -3 ते -2। अब ए ते ओ कार्डिनैलिटी बेशक सेम है बट ए ते भी इक्वल नहीं है, बिकॉज एलीमेंट्स आर डिफरेंट, एलीमेंट्स डिफरेंट ने, तो इस करके जिहड़ा हैगा ए वाली ऑप्शन नहीं वैलिड हैगी। ठीक हो गया जी। उस तो बाद हैगा तुहाडे कोल फिर दे दिता ए दे दिता x सच दैट x is a letter, x is a letter in word follow FOLLOW, ते जिहड़ा हैगा वो दे दिता x सच दैट y कर, चलो z कर लो, z सच दैट z is a letter in word wolf, ठीक है जी। सो क्वेश्चन की सीगा तुहाडे पास, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन है बट सिंपल क्वेश्चन भी कई बार कंपलैक्स हो जाते हैं। एक्स इज़ ए लैटर इन द वर्ड फॉलो। सो एवें नहीं करना जी, फॉलो च 6 अखर हैं जी, वॉल्फ 4 अखर हैं जी, तो फिर इस करके बराबर नहीं होएगा, क्योंकि टीचर अक्सर इदां दा क्वेश्चन पाते हैं और बच्चे नूं इस तरह के क्वेश्चन च कन्फ्यूजन भी अराइज होंदी है, बई हुण मैं की करा जी, पक्का गल है तुहाडे पास कि कार्डिनैलिटी सेम नहीं। जदों तुसीं सैट की डेफिनेशन दित्ती सी ना, सैट की डेफिनेशन च मैं 2 अखर करवाए सी, एक तो सीगा वैल डिफाइंड, एक सीगा डिस्टिंक्ट। तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट NICT, चलो। तो वैल डिफाइंड डिस्टिंक्ट जो वर्ड आपां ने यूज़ किया सीगा, इस वर्ड तो बिना आपां सैट नहीं डिफाइन कर सकते, ये आपां नूं पता है। और जदों आपां ने वैल डिफाइंड की डेफिनेशन दी सीगी, अगर तुसीं फस्ट लैक्चर देखा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ पास, ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ग्रुप ऑफ बिग रिवर्स है, इनू तुसीं वैल डिफाइंड नहीं कह सकते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है ना।
तो हुण ध्यान नाल देखियो, अगर मैं इत्थे देखा इस डिस्टिंक्ट एलीमेंट एफ है, ओ है, एल है, तो डबल्यू है, क्योंकि डबल एल नूं लैना नहीं, डबल ओ नूं लैना नहीं गा तुहाडे कोल। सो डिस्टिंक्ट एलीमेंट तां आपां नूं पता लग के जी। हाँ जी, ध्यान नाल देखो जी, कोई रौला तो नहीं हैगा। ठीक है जी, तुहाडे कोल डिस्टिंक्ट एलीमेंट्स। हुण अगर तुसी वुल्फ लिख दिओ, सीरियल का कोई चक्कर नहीं, एफ के कोरसपोंडिंग एफ आ गया, ओ के कोरसपोंडिंग। सो तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है जी। सो इस 6 ते ना जाना। ठीक है, डेफिनेशन सी वैल डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, तुहाडे पास तो ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होनी चाहिए है। तो ये रैपीटिशन मैं गिणना नहीं, जे गिणना नहीं तो एफ है वो 2 बारी, 1 बारी चलूगा, एल 1 बारी, डबल्यू। सो टैली कर गया, जे टैली कर गया तो समझ लो कि ये हो गया इक्वल। ठीक हो गया जी। सो चलिए जी, नैक्सट आप डेफिनेशन ते तुहाडे कोल। ठीक है, सो ये वाली चीज़ बंदा आराम ना कर सकता, तुहाडे कोल कोई एडा लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा। बाकी बुक चो क्वेश्चन करोगे तो अगर डेफिनेशन क्लीयर ने, ठीक है, फिर तो बड़े आराम ना कर दोगे। जे डेफिनेशन क्लीयर नहीं हैगियां फिर आप कोई चक्कर नहीं। बुक पूछ रहे फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, और इंग्लिश अल्फाबैट्स हैं 26 होंगे तो श्योरली बंदा फाइनाइट कहूगा। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 कह ला इनफाइनाइट से, बिल्कुल सौखियां सौखियां चीज़ां ने जी तुहाडे कोल। सो इन्हां विच इन्ना लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा तुहाडे कोल। ठीक है जी। उस तो बाद वर्ड आंदा सबसैट। सो इनू ध्यान ना समझना जी, सबसैट। ठीक है जी। हुण सबसैट का मतलब की हैगा? सबसैट का मतलब है जो तुहाडा सैट है उस चो उठाई हुई कोई ऐसी चीज़ जिहड़ी उस तो छोटी या बराबर होने की पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, किदां मैं लिखा पहला लिख। सो ए लिखिया 1 2 3। हुण एक बी लिख लिया, ये भी सैट है, ये भी सैट है, दोनों सैट है ना तुहाडे कोल। सो एक वो भी सैट है, वो भी सैट है, पर ये वाला सैट ये अंदर बैठा है। ठीक है जी। तुसी ख्याल रखना, जे तो मैं कला 1 की गल करा तो 1 बिलोंग्स हुंदा। अगर मैं पूछा 1 ए का की लगता है तो तुसी कहोगे 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब है एलीमेंट ऑफ सैट। ठीक है जी। सो एलीमेंट ऑफ सैट जिहड़ा रहेगा तुहाडे कोल ये रहेगा। बट हुण आपां 1 नूं आसे पासे जिहड़ा हैगा एक ब्रैकेट दे दित्ती सैट। हुण ए भी सैट है, ए भी सैट है, पर यह सैट इस दे विचों बनिया है, तो फिर आप पता की कहने, बी इज़ सबसैट ऑफ ए। बराबर है नहीं तो बराबर की पॉसिबिलिटी कटती। सो बी इज़ सबसैट ऑफ ए। सो बी ए का सबसैट हैगा तुहाडे कोल। सो बहुत कोई लंबा चौड़ा एलीमेंट नहीं है तुहाडे पास। जे लिखा डेफिनेशन, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ set B, if all elements of set B are present in set A, then B is called subset of A. So definition की औखा है वो मैं तुहानूं सीधा दसदा, बुक विच इदां लिखी होगी। ठीक है, एक ध्यान ना समझना, सब जो आप सबसैट लिखते हैं उदों आप लिखते हाँ कि इक्वल की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जो आप एग्जाम्पल लई इत्थे इक्वल की पॉसिबिलिटी नहीं है तो इत्थे आपां इसनूं कह दिता कि ये सबसैट हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, बट बराबर नहीं हैगा। बराबर तो 1 2 3 वाला होगा तुहाडे कोल। सो इफ ऑल एलीमेंट्स ऑफ सैट बी आर प्रेजेंट इन सैट ए, दैन बी इज़ कॉल्ड सबसैट ऑफ ए। बी ए का सबसैट है, ए की होगा तुहाडे पास, ए बी का सुपरसैट होगा। ठीक है जी। हुण ये वाली चीज़ आपने लिख ली। हुण आपां थोड़ा जिहा ख्याल रखना हैगा तुहाडे कोल, मतलब मैथेमैटिकली एक चीज़ आप होर ख्याल रखनी हैगी है जिहड़ी मैं यूज़ करनी है
ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈ कि अगर मेरा ए सबसैट ऑफ बी है, हाँ जी ध्यान ना समझना, ए सबसैट ऑफ बी हैगा तुहाडे कोल इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए इज द सबसैट ऑफ बी इंपलाइज एक्स बिलोंग्स टू, वो तो उल्टा लिखिया मैं, उत्थे बी सीगा, मतलब ए बी का सबसैट है अगर एक्स कोई ए विच होएगा वो जरूरी ही है कि बी विच होएगा, ठीक है ना। मतलब तुसी ऐ देखो कि मेरा आ ए होएगा, आ मेरा बी है, तो ਇਹਦਾ मतलब छोटा कौन है ए, तो एक्स अगर ए विच है तो एक्स श्योरली बी विच होएगा, इस केस विच बी छोटा है सो ए, ठीक है ना। बी विच तो सिर्फ 1 ही आया ना, ए दे विच की आ गया 2 3 एक्स्ट्रा भी नहीं, सो सीधे लिख लो, कॉमा पाने की लोड़ नहीं, ठीक हो गया जी। तो ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ सबसैट, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ सबसैट ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है, ये मेन चीज़ है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ने फिर एग्जांपल लिख ली पेज सारे में, हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ने फिर एग्जांपल लिख ली है ना, नंबर ऑफ सबसैट्स, ठीक है। अगर ए दे विच n एलिमेंट्स ने, A has n elements, then number of subsets पता कितने होंगे ने, 2 की पावर n, ठीक हो गया जी। किदा लो आप एग्जांपल, सपोज मैं आ ले लिया, आ ए है, ये मैं लिख, अगर मैं 1 लिखा, 1 ये हैगा ना सबसैट हो गया, 2 भी ਇਹਦਾ सबसैट है, 3 भी ਇਹਦਾ सबसैट है, अगर 1,2 ले ली आ भी सबसैट है, अगर 2,3 ले ली ये भी सबसैट ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ, ਯੈਸ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ 'ਚ ਹੋਣ ਹੈਗੇ, ਸੋ 1 2 3 ਆ ਵੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 5 ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਇਟ कर रहे हैं। एम्पटी सैट हर एक चीज़ का सबसैट होंदा है, हर एक सैट को एम्पटी होने की पॉसिबिलिटी होंदी है, सो एम्पटी सैट इत्थे नोट पा लियो जी, ये ट्रेडिशनली ही याद रखना, नोट 5 यानी कि एम्पटी सैट इज सबसैट ऑफ ऑल सैट्स, सबसैट ऑफ ऑल सैट्स, सो एम्पटी सैट इज द सबसैट ऑफ ऑल सैट्स मीनस ਇਹਦੇ खाली होने की पॉसिबिलिटी जी है वो एम्पटी सैट हो सकती है। सैट मैंने जे ए च कोई एलीमेंट ना हो तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये सबसैट्स भी कोई एलीमेंट ना हो, तो यदा मतलब गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 3 एक लिखना रह गया, 8 हो गए। तो जे ये मैं 3 एलीमेंट लिखा, 2 की पावर 3 कितना होंदा 8, ठीक है जी। सो नंबर ऑफ सबसैट्स कितना लिखी देने आपने, आप नंबर ऑफ सबसैट लिखण लई सिर्फ 2 की पावर n रेज कर देनी है। एग्जाम्पल फिर बदल लीए आप, तो एग्जाम्पल बदल लीए, अगर आप तुहाडे कोल सपोज तुसी सिर्फ ए ते बी ले लिया, आ तुहाडा ए है, ये नंबर ऑफ सबसैट्स किन्ने होणगे, नंबर ऑफ सबसैट्स वो 2 की पावर 2, सो आंसर की आ गया 4। तो जेडे सबसैट्स है वो लिखने किवें ने, ए बी ते 5, तो ए वाली जी चीज़ है ये आप नंबर ऑफ सबसैट्स निकालने, और ए नू बनाने का एक तरीका होंदा कंबीनेशन फार्मूला। सो कंबीनेशन हजे आप पढ़िया नहीं हैगा, इस करके मैं थोड़ा दस नहीं सकता, ठीक है। तो हाँ जी, सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। हुण इस तो बाद ना एक डेफिनेशन आती है, लास्ट हैगी है डेफिनेशन हैगी पावर सैट, पावर सैट ऑफ ए मान लो, तो आप पी ओ के पावर सैट का मतलब की होंदा, सैट ऑफ ऑल सबसैट्स ऑफ ए गिवन सैट, सारे सबसैट इकट्ठे कर दिए जो बनेगा उसमें असी पावर सैट कहने हैं। फॉर एग्जांपल ए ले लिया मैं 1 2, तो पहला सबसैट 2 आया, 1 आया, 1 2 आया, 5 आया, इन्होंने सारिया एक ब्रैकेट च पा के एक
ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੈੱਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈੱਟ ਬੈਠਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ A ਆ 1 2 2 3 ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਬਸੈਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਿਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸੈਟ ਲਿਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸੈਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਣਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। क्यों? क्योंकि मेरा रूल की है एलिमेंट उठाओ ब्रैकेट पाओ, एलिमेंट उठाओ ब्रैकेट पाओ, कट्ठे उठाओ ब्रैकेट पाओ, तो 5 लिखता। हुण मेरे को ऑप्शन क्या है, एलिमेंट उठाओ ब्रैकेट पाओ, एलिमेंट उठाओ ब्रैकेट पाओ। इक्वल को ऑलरेडी पहला सी, दूजी तुसी पाउणी है, क्योंकि जे उहदी इक्के ब्रैकेट रह गई तो उस केस विच उसने एलिमेंट रह जाना। सो 2 इज़ नॉट सबसैट ऑफ ए, ये सिर्फ एलीमेंट ऑफ ए है। एलीमेंट हमेशा बिलोंग करूँगा, बिलोंग है, नॉट बिलोंग नहीं, बिलोंग है। एलिमेंट ए बिलोंग्स, सो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, सबसेट हमेशा ब्रैकेट लेके जाएगा। सो ठीक है जी। जे हजे अगे पूरे तो लिखे नहीं, जे तुसी 1 ना 2 लेना होवे एक ब्रैकेट तुसी पाओगे, अगर तुसी 1 ना 2 3 लेना होवे तो एक ब्रैकेट तुसी पाओगे, अगर तुसी 2 2 3 लेना है तो एक ब्रैकेट तुसी पाओगे, अगर तुसी 2 3 1 लेना है तो एक ब्रैकेट तुसी पाओगे। सो देखो जी सारियां हो गई। जो कोई मैं रिपीट लिखती तो गलत हो गया, सो अब मैं रिपीट लिखिए। सो 1 2 ते 2 3 ये सारियां इकट्ठियां च पाओगे तो एक 5। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये लिखने का तरीका जी, इन्ना ही कर लियो, तुहाडे कोल तुहानूं काफ़ी कुछ सैट का समझ आ जाएगा। थैंक यू।